Okay, good evening, everyone. Another special edition of Fashion Talks. I'm your host and moderator for the day. My name is Romil. I'll sincerely request everyone to please switch off the mics as well as keep the video in off mode. Otherwise, bandwidth का थोड़ा सा issue हो जाता है कई बार, जिसकी वजह से आपको वीडियो नजर आएगा, बट बाकी जो है जिनके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके साथ थोड़ा गड़बड़ होने के चांसेस है। एक तो अपना वीडियो ऑफ रखिएगा एज वेल एज माइक को म्यूट पे रखिएगा प्लीज। ठीक है, तो टुडे सेशन जो हमारा होगा 45 मिनट्स का होगा एज ऑलवेज। सो वील हैव 15 मिनट्स ऑफ क्वेश्चन आंसर सेशन इन द एंड, एंड देन 45 मिनट्स के बीच में अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है चैट बॉक्स में जाके आप उसको लिख सकते हैं। Important information for you all is that next time onwards we'll have sessions only on Saturday because lockdown open हो गया, तो because अभी जो है responsibilities and activities काफी और हो जाएंगी, तो इसलिए we thought we'll have only once a week, every Saturday 8 PM we'll be coming online. And in case of any suggestions, you are most welcome to suggest the kind of speakers you want to have, as well as any specific people you want to have. Feel free to interact. Please feel free to give it in the chat box whom you want to be invited. We'll surely include them subsequently. If you like the videos, do subscribe, share, like, comment, whatever, if you like. That's what. Right, coming on to the guest, very, very special guest, Shekhar Gaur. I know him since 2014. Once we met, first time during the Airtel Hyderabad Marathon, and me and my wife, we were shocked. You know, it is an understatement. All those who have gone through his profile, all those who know him, would surely concur with whatever I am saying, because he is an amazing personality. 2014 to 2020, last 6 years, I've never seen him sad anytime. Whenever I met him, last time I met him during the Hyderabad Marathon, and again, very, very happy, always cheerful, and you will never know, you know, the kind of hardships he has gone through. And if we have shared the profiles, आपने अगर profile पढ़ा है तो you know what he has gone through. And जहाँ भी आज मैंने share किया इनका profile, people have actually said, you know, they have said, is he real? Be it my group in IIT Kharagpur, be it other places. Shekhar, am I audible? No, it's clear now. Not audible? No, it's okay. One second. Let me check, because yes, someone else has also said that it's not audible. Because the phone I'm using here is audible there. Yeah, it's audible. Right. Shekhar, you can hear me? Yes, sir. Acha, great. If you can hear, that's nice. Okay, so we'll take the journey of Shekhar from the moment, you know, we started. The incident started. So 2006 was the first time wherein this incident happened with them, and for that matter we'll take you to 24th of December 2006, और हम रिक्वेस्ट करेंगे शेखर से कि जिस टाइम से इंसिडेंट शुरू हुआ वहां से आप बताना शुरू कीजिए कि कैसा कैसा रहा आपका इंसिडेंट। जिसको सुनाई नहीं दे रहा, देयर समवन हु इज राइटिंग इन द प्राइवेट थिंग दैट इट इज नॉट ऑडिबल। आई थिंक आपको अपना ऑडियो चेक कर लीजिए, वॉल्यूम 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज अदर पीपल आर एबल टू हियर इट। सो आई थिंक यू शुड चेक, अदरवाइज आप एक बार लॉग ऑफ करके फिर से लॉग इन कर लीजिए तो शुड बी ऑडिबल। शेखर, ओवर टू यू। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड थैंक्स टू एवरीवन एल्स हु हैज बीन हियर विद अस। शेखर, ओवर टू यू, टेक अस टू 24 दिसंबर 2006। हाउ वाज द इवनिंग, क्या इंसिडेंट था? Hi everyone. So 2006 December 24, I never forgot in my life. That was changed my life. That day, around 5:30, 6 o'clock, I was sitting on a wall on first floor and speaking on phone with my friend. It's a deep conversation. Suddenly, what happened to me, I don't know exactly. One of my friend came, pushed me out. जस्ट ऐसे मजाक में ऐसा पुश किया था। जनरली क्या होता है जब हमें नीचे गिरने के टाइम में जो कहाँ प्रॉब्लम ज्यादा रहता है उसको माइंड को सेट होता है अपने अपने। उसी टाइम में मुझे भी ऐसे हुआ था। अगर नीचे गिरे तो ट्रांसफार्मर में, अगर बाजू का वायर भी है, अगर वायर को पकड़ ले तो भी मर जाते हैं, मगर उसमें से ज्यादा जिंदा बचने के लिए तो वायर पकड़ लिया तो कम से कम जिंदा बच सकते हैं। तो इसीलिए मैंने वायर को पकड़ लिया ताकि बाद में मैं ओपन करके देखा। मैं वो उसी टाइम में
पता नहीं, मेरा सामने सब डेड बॉडी से मुझे स्ट्रेचर पे फेंक दिया। जब मैं उठ के देखा था सारे डेड बॉडी से, उस टाइम में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे क्या हो गया। मेरा राइट हैंड पूरा बर्न हो गया, एंड मेरे लेग्स बोथ आर बैडली डैमेज। मगर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं चलने के लिए। मैं उसे माचुरी से बाहर आ गया, ऐसे चल के जहां मैंने चलता है वहां पूरा ब्लेड का निशाना लगा के आ रहे हैं। तो ताकि जनरली होता है क्या है, जब जो एक आदमी इतना खून निकल रहे हैं उस टाइम में माचुरी से आ रहे हैं, जनरली क्या होता है सब लोग मुझे देख के डर जा रहे हैं, इससे क्या आ रहे हैं, क्या हो रहा है, उन्हें माचुरी से आ रहे हैं। ओके शेखर, लेकिन 2006 में 2006 में आपका एज कितना था उस समय जब ये इंसिडेंट हुआ? 18 years old. 18 इयर्स की एज में ये इंसिडेंट जैसे आपका आज हुआ, तो आपको मोर्चरी में कब आइडिया आया? नेक्स्ट डे या सेम डे? कितने टाइम बाद आपको रियलाइज हुआ कि? नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे तक मतलब आपको कोई सेंसेस भी नहीं थे? एक बार आपको गिरने का पता था और नेक्स्ट डे जब आपको होश आया तब मोर्चरी में होश आया? यस, मुझे मालूम नहीं को कहाँ कैसे आया मैं मार्चरी को। जब तक मुझे मालूम है कि मैं ऐसा पकड़ लिया बस। ओके। सो वहां से मैंने चल के जनरल वार्ड को पहुंच गया। जनरल वार्ड में भी बहुत वहाँ जो सिस्टर लोग रहते हैं वो लोग मुझे कुछ भी ट्रीट नहीं किया। मैं ऐसे बेड पे पड़ा हुआ, सारे मेरा लेग और हाथ मुझे सपोर्ट कर, मुझे एनर्जी खत्म हो रहे हैं, ब्लड निकल जा रहे हैं, एनर्जी खत्म हो रहे हैं। बट शेखर एक बार एक चीज और, मतलब ये थोड़ा ना समझ में, तो जब आप मोर्चरी में थे तो आपके आसपास एक्चुअल मतलब डेड बॉडी थी वहां पे? यस। और कोई मतलब आपका कोई जान पहचान वाला नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, नो वन? कोई भी नहीं है मेरा सामने, मेरे साथ मतलब कोई भी नहीं है। मैं कैसे है मुझे पेरेंट्स उधर रिलेटिव सबको लगा कि हो गया डेथ? किसी को इन्फॉर्म ही नहीं, किसी को इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया। नहीं, बट मोर्चरी में जब कोई हॉस्पिटल तो ले गया होगा वहां से, जब ये वायर के साथ एक्सीडेंट हुआ आपका, हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल में जब उन्होंने देखा होगा कि कंडीशन ऐसी है या डेथ हो गई, तो उन्होंने मोर्चरी में डाल दी डायरेक्टली, और घर वाले लोग किसी को भी इन्फॉर्म नहीं दिया। पहले क्या है कि वो 11 kV हाई टेंशन वायर है। ओके। शायद वो लोग भी मान लिया कि वो मर गया मैंने, क्योंकि मैं आई वॉज बैडली डैमेज्ड। मेरा हाथ है, राइट हाथ है, ऐसा जो फ्लैश रहते हैं बेचते, तो लाइक हैंगिंग फ्लैश ऐसा है, और मेरा 3 उंगली ऐसा कट के ऐसा ऐसा था। सो मेरा हाथ जहाँ यहाँ रिस्ट तक पूरा ब्लैक हो गया, डेड हो गया, और मेरा 2 पैर ऐसे ही हो गया, इतना मोटा मोटा हो गया। मुझे देखे मैं ही डर गया। सो बाद में जब मैंने जनरल वार्ड पहुंच गया, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, कम से कम फर्स्ट एड भी नहीं किया था मुझे। इसके बाद अपने अपने मैंने होश निकल जा रहे हैं, भूख लग रहे हैं, शाम को हुआ था, भूख लग रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट किया था वो सिस्टर से, मुझे कुछ दे दो, दूध कुछ तो भी दे दो, मगर वो लोग मना किया था। We can't provide anything for you because you are not admitted in the hospital, so we can't provide. So I was crying again and again. मुझे क्या हो रहा है, मेरा ऐसा उनसे सफर हो रहे हैं, मुझे हेल्प भी नहीं कर रहे हैं, कोई आके मुझे कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं। नहीं, बट आपने आसपास पूछा नहीं कि कोई आया नहीं आपके साथ, कोई जान पहचान, कोई रिलेटिव, कोई फैमिली मेंबर, कुछ कोई नहीं, कोई सपोर्ट भी नहीं है मेरे साथ, कोई भी नहीं है मेरे साथ। ये कहाँ की बात है? नलगोंडा? नालगोंडा। सो वहां से मैंने किया, मेरा कभी भी मेरा पाक वॉलेट में 50 रुपीज रहता, और 50 रुपीज मुझे जिंदा बचाया। वो 50 रुपीज ने मुझे, मेरे पास जो 50 रुपीज है वो 50 रुपीज ने वार्ड बॉय को दे दिया, कुछ तो लाल मुझे खाने के लिए कुछ डाल लीजिए, और 1 रुपए सिक्का डाल के मेरे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो, ऐसा बोल के मैंने रिक्वेस्ट किया था। उन्होंने तुरंत जाके मुझे खाने के लिए
दूध लाया था। मेरे फैमिली को इन्फॉर्म भी किया था। वो मेरे फैमिली ने लगभग 3 और 3.5 घंटे में पूरा मेरा परिवार आया था हॉस्पिटल को आके। मेरा फैमिली जब मुझे देखा था, वो लोग होश में नहीं है, हाँ obviously। वो लोग भी पेशेंट हो गए हैं। मुझे समझ भी नहीं पा रहे मेरा लाइफ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरा लाइफ में। और दूसरा वाले के वजह से मेरा जिंदगी ऐसा बर्बाद हो गया, मैं कैसे आगे जी पाऊंगा। सारे दिमाग में चल रहे हैं। वो उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ। इमिडिएटली मुझे वहां से कामरानी हॉस्पिटल नारकटपल्ली शिफ्ट किया था। ओके उधर भी बहुत दिक्कत हुआ था मुझे एडमिट एडमिट करने के लिए। मेरा पेरेंट्स, मेरा भैया, बहुत लोग सपोर्ट किया था। जो एडमिट करने के लिए बहुत रिक्वेस्ट किया था, जो भी होने दो कम से कम आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो बोल के रिक्वेस्ट किया। सारे पेपर्स में, डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर किया था, तभी वो लोग एडमिट किया था। इमीडिएटली मुझे ऑपरेशन थिएटर लेके जाके मेरा, जहां तक मेरा राइट हैंड ब्लैक हुआ था वहां तक कट कर दिया। ओके ऐसा 4 सर्जरी के बाद में मेरा हाथ ऐसा इधर तक बचा, जिंदा बच गया ये। और इसके बाद और लगभग 1 महीने 1.5 महीने के बाद मेरा राइट फुट बिलो नी तक निकल दिया। ये सारे निकलने के टाइम मुझे बहुत सपोर्ट किया डॉक्टर शरद, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर शरद एंड डॉक्टर मधु गारू, ओके। डॉक्टर रवि, डॉक्टर मुरनालिनी, डॉक्टर many people involved in my तो ये सब medical उसी case. हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के थे जहाँ पे आपका बाद में ऑपरेशन हुआ? Yes, it's a Kamran hospital. Kamran hospital में ये ट्रीटमेंट हो रहा है। ओके उधर मुझे ऐसे ट्रीट किया था, सारे मेरा जैसे फैमिली जैसे ट्रीट किया था, वो जो डॉक्टर है, सिस्टर्स है, ये सभी लोग। तो वहां से मुझे कम से कम 4 महीने में मेरा राइट हैंड इधर तक कट कर दिया, बिलोनी, राइट लेफ्ट साइड फुट बिलोनी, एंड राइट फुट का जो फुट रहता है ना, नीचे से बॉटम रहती है, ये सब कुछ निकाल दिया। और उंगली भी ऐसा एक बड़ा टो फिंगर निकाल दिया, और बाकी उंगली ऐसा रहता। अच्छा, योर राइट और लेग, एबल टू आपका जो वॉक। राइट लेग भी नॉर्मल नहीं है, मतलब जैसे? नो, नो। ओहो। So after 5 months, I came back to home. तब जहाँ घर आने के बाद में बहुत प्रॉब्लम में फेस किया था। कैसे क्या होता है जब हमें बहुत दिनों के बाद, ये सारे निकलने के बाद घर पहुंच गए हैं। वैसे भी मेरा पेरेंट्स बहुत हालत अच्छा नहीं है, वो लोग बहुत परेशान में है। ऐसा इतना बड़ा होने के बाद ऐसा हो गया। मेरे ऊपर बहुत होप है उन लोग को। मैं ऐसा हो गया, वो लोग भी बहुत प्रॉब्लम है। मतलब ये जब हमें घर पहुंच गया, घर में भी ऐसे हैं जो देखने के लिए आते हैं ना, वो लोग सिंपैथी दिखाने के लिए आते हैं। अरे यार वो ऐसा हो गया, तो उस टाइम में अच्छा है, दो है, पैर है, हाथ है, ये सब तो बात करते हैं। मगर उस टाइम में मुझे वो मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए। उस टाइम में मुझे सपोर्ट चाहिए आगे बढ़ने के लिए। मैं क्या कर सकता हूँ, उसको रास्ता निकलने के लिए सपोर्ट चाहिए था उस टाइम में, मगर वो सपोर्ट नहीं मिला मुझे। शेखर, एक चीज और, फिर भी मेरा भैया लिंगस्वामी, मेरा कजिन, या तो आपके फैमिली में कौन कौन है? ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स के साथ ब्रदर सिस्टर के बारे में बताइए। पापा, माँ, मेरा छोटा भैया, बस मैं 4 आदमी हूँ। ओके। सो ये ऐसा सिंपैथी दिखाने के लिए आते हैं, मगर उस टाइम में बहुत गुस्सा भी आया था। उस टाइम में मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आगे जाने के लिए मैं कुछ तो रास्ता बता दो। मैं किसी को भी नहीं बता पाऊँ, मेरा इनर फीलिंग है ये। मैं बहुत स्ट्रगल हुआ, मैं अंदर में बहुत फील हो रहा है मेरा ऐसा हो गया, और आगे जाने के लिए मैं कुछ तो भी कर लो बोल के। कुछ टाइम में मैंने एक बार मैंने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था।
क्या होता है, ये सारे दो हाथ दो पैर रहने वाले भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं आजकल। राइट मेरा बॉडी में मेन वेपन है, मेरा हाथ चले गए, मेरा पैर चले गया, और दूसरा फुट भी अच्छा नहीं है, कम से कम घुटने के लिए। राइट Literally, I was floor walker. Literally, I was floor walker. So I can't do anything that time. I losing my hope, राइट and I didn't get any positive support from others. My family didn't know they about पब्लिक के बारे में उतना जानता नहीं, तो आगे राइट जाने के लिए, सो इस स्पोर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। मतलब मैंने ये 2008 2007 और 8 लगभग उस टाइम में मैं बाहर आया था। मेरा कजिन भैया का फ्रेंड भास्कर है, उसका मोबाइल शॉप में काम किया था, लाइक सॉन्ग्स डाउनलोडिंग करने के लिए। उसी टाइम में मैंने सब कुछ सीख लिया, जो जैसे कैसे मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, जो प्रॉब्लम होता है कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ मैंने यूट्यूब और गूगल से सीख लिया था। मैंने रिपेयरर बन गया, ताकि मैंने एक मोबाइल शॉप को भी ओनर बन गया। ओके इसी ऐसा चल रहा है मेरा लाइफ, ऐसा चल रहा है। मुझे जीने के लिए एक मौका मिला था, ये दूसरा रास्ता है मैं आगे जाने के लिए। ओके राइट इसी से मैं शुरू किया था मेरा जिंदगी सेकंड लाइफ। 2014 अगस्त में मुझे एक कॉल आया था, दस्तगिरी इज फ्रॉम चेन्नई। इन्होंने मुझे फोन किया था, मुझे कैसे पहचान लिए मुझे नहीं मालूम। उन्होंने इनवाइट किया था एयरटेल हैदराबाद मैराथन को। राइट शेखर एक बार आके देख लो, हैदराबाद मैराथन को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, आप एक बार आ सकते बोल के। मैंने इसके पहले मैंने किंगकोटी हॉस्पिटल से मैं जयपुर फोर्ट लिया था, उसी से मैंने Okay. मोबाइल शॉप भी चला रहे हैं। राइट मुझे वॉकिंग के बारे में उतना उतना आइडिया नहीं है, वो रनिंग के बारे में, मैराथन क्या होता है मुझे नहीं मालूम उस टाइम में। 2014 when I come to Hyderabad, that time I'm knowing मैं तो थोड़ी ना है, मेरा तो एक हाथ है और एक पैर भी है। राइट बहुत लोग मुझे, जब मैंने गचबोली स्टेडियम आया था, बहुत लोगों को मैंने देखा था। कुछ लोग पैरालाइज्ड पर्सन हैं, कुछ लोग दो हाथ नहीं है, कुछ लोग दो पैर नहीं है। और लोग ही आ रहे हैं, मुझे क्या हो गया, मेरा पे एक हाथ है, दूसरा आर्टिफिशियल लेग है, मेरा और दूसरा पैर भी है, मैं चल सकता हूँ बोल के। उसी टाइम में मैंने प्राउड फील हुआ था, मैं कैसे भी करना है, इन लोग कर रहे हैं, इन लोग के साथ मैं 5 किलोमीटर करना ही करना। करेक्ट Though that was my first 5 kilometer, I ran along with Kiran Khanojia, and Right. so 5 In kilometers. fact, that was the first time I with a also saw Jaipur you. food. Yeah, because I Yeah. remember I was pacing that So- time for 4 hours. तब मैं फर्स्ट टाइम मैं और वाइफ ने जब देखा था तो वी वर काइंड ऑफ शॉक, बिकॉज कुछ स्टेट में भागना ना देखना, एंड दैट वाज योर फर्स्ट टाइम टू हैदराबाद मैराथन। मतलब उससे पहले बिकॉज 2008 में हुआ, तो आप हैदराबाद में तो नहीं रहते थे, आप विलेज में रहते थे अपने? No, that was my first visit of Gachibowli Stadium. Okay. Even and okay, so that marathon makes me happy, and that marathon makes my life positive. Correct. जब मैंने वहां मैराथन दौड़ा था, मुझे ये इतना एनर्जी मिला था, मैं कुछ भी कर सकता हूँ आगे जिंदगी में। सो वहां से मेरा लाइफ, दूसरा लाइफ, स्पोर्ट्स का लाइफ शुरू हुआ था, जहां मैंने 5 किलोमीटर कंप्लीट किया था। वो कंप्लीट होने के बाद जब मैंने लेग निकल के देखा था, मेरा लेग इतना ऊन से फंसा हुआ, इतना ऊन सा गया था, ब्लड निकल रहा है। और जयपुर फुट से कम से कम हमें लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल सकते हैं, मगर उससे नहीं भाग सकते। मैं उसी से मैं 5 किलोमीटर दौड़ा था। इसके बाद मुझे रवि श्रीवास्तव and Dr. Mohana Gandhi, founder of the Artificial Limb Foundation India, Dr. Mohana Gandhi सर ने मुझे हेल्प किया था। जब अभी मैंने जहाँ जो लेग पहना था, वो इम्पोर्टेड लेग, वो लेग दे के मुझे सपोर्ट किया था। जो भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम जिंदगी आगे बढ़ने के लिए।
just keep your head and heart straight. You can conquer the world. He motivates me a lot. And उन्हीं के ऑफिस में काम दिया था. उधर काम कर रहे हैं. उधर ही डेली रनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं. उसी टाइम में मैंने कई मैराथन्स में पार्टिसिपेट किया था. 2014 से 2020 तक मैंने 88 रनिंग इवेंट्स कंप्लीट किया था. अभी तक 88 रनिंग इवेंट्स कंप्लीट किया था, इंक्लूडिंग 5 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स एंड 1 हाफ मैराथन. एंड सबसे बढ़िया है कि हाफ मैराथन आई कंप्लीटेड इन देहरादून. दैट वाज माय फर्स्ट लोएस्ट टेम्परेचर हाफ मैराथन. करेक्ट. So I feel I see ये मैराथन का सर्किल कैसे होता है, सभी को एक ही जगह पे इकट्ठा करते हैं. Right. उस टाइम में कई लोग से जान पहचानना और आगे बढ़ने के लिए उनसे इम्प्रेशन मिलता है, जो आगे बढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा कैपेबिलिटी क्या है, हमारा ये सब कुछ देख सकते हैं. तो वहां से मेरा लाइफ स्टार्ट हुआ था. उसी में जो मैराथन कंप्लीट किया था, ये मैराथन के बाद और कुछ अलावा कर सकते हैं. शेखर डॉक्टर मोहन गांधी ने बोला था और कुछ भी कर सकते हैं, और आगे बढ़ने के लिए सोचो और क्या कर सकते हैं आप. वेरी नाइस. और क्या कर सकते हैं. सो साइकिलिंग चलाते शेखर सर ने पूछा था, साइकिलिंग चलाते. ओके. सर मैंने साइकिलिंग किया था, मगर उतना कंफर्टेबल से नहीं. जो मेरा बॉडी में सब ठीक है उस टाइम में चला था. राइट. इसके बाद मैं ट्राई नहीं किया. तो क्यों नहीं ट्राई करते. मुझे इमीडिएटली मुझे साइकिल दिलाया. वो साइकिल में हमें एयरपोर्ट से लाया था, डेकाथलॉन से, शमशाबाद एयरपोर्ट से लाया था. उसी साइकिल में मैंने डेली 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर ऐसे साइकिलिंग करते रहते. और डेली ऑफिस को साइकिलिंग में आया था. वो साइकिलिंग से मुझे, जब मैंने साइकिलिंग सीख रहे हैं, साइकिलिंग फ्रेंड्स तो भी मिलजुल के और 10 किलोमीटर ऐसा कंपटीशन करते करते 200 किलोमीटर भी अटेम्प्ट किया था. राइट. और 200 किलोमीटर को भी मैं किरण कनौजिया के साथ से मैं किया था. दैट वाज माय फर्स्ट 200 किलोमीटर ब्रेववे अटेम्प्ट. And me and Kiran Kanajia, we skilled it 169 kilometers, but I never heard in my life that cycling. वहाँ में जब मैंने 200 किलोमीटर का साइकिलिंग अटेम्प्ट किया था, वो 169 किलोमीटर में रुक गए. मैं उसको छोड़ा नहीं, और दूसरी बार कैसे भी अटेम्प्ट करना है, वो 200 किलोमीटर कंप्लीट करना ही करना. राइट. तो इसको क्या चाहिए, और दूसरा साइकिल चाहिए. वो साइकिल के लिए क्या करना, उतना हेल्प करते हैं मगर उतना महंगा हेल्प नहीं कर सकते. तो मगर डॉक्टर मोहन गांधी ने बहुत सारे किया था मेरे लाइफ में. अगर इस पोजीशन में है तो डॉक्टर मोहन गांधी का क्या बोलते हैं, सपोर्ट की वजह से. नॉट ओनली दैट, उसी हॉस्पिटल में उसी के साथ काम कर रहे थे हमने. और रामकृष्ण मठ को भी मैंने एक फंक्शन पे गया था, रामकृष्ण मठ को. उधर से और लोग से मिलजुल के और मेरा सर्कल और बड़ा हो रहे हैं. उधर भी बहुत सारे चीजें सुन लिया था मैंने. बहुत सारे मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंज किया था. नॉट ओनली दैट, वहाँ मुझे महाराज बोधमाया नंदा जी के महाराज के साथ बहुत सारे लेक्चर्स भी दिया था रामकृष्ण मठ में. तो मेरा स्टोरी टेलिंग है. इसके बाद ऐसा और बड़ा लोगों से मिलजुल के काम कर रहे हैं. उस टाइम में, उसी टाइम में मुझे एक जॉब भी मिला था लेमन ट्री होटल में. फर्स्ट सीसीटीवी मॉनिटरिंग. वही करते करते टाइम में डेली मैंने एरा मंजिल से हाईटेक सिटी बाय साइकिल में आया था. उसी टाइम में मैंने बहुत सारे संडे जाते रहे. तो उसी टाइम में और ज्यादा करना है साइकिलिंग. Not only this 200 kilometer, not only 10 kilometers, 30, it is not sufficient for me. I want to do moreover, not only जो अब तक जो नहीं करा वही करना है. तो मैंने
ढूंढ रहे हैं मैं क्या कर सकता हूँ। उसी टाइम में सब लोग ये कश्मीर से कन्याकुमारी या मैं बाइक में जाके आए या कार में जाके आए, तो मैं क्यों नहीं जा सकता बाई साइकिल। ओके उसी टाइम में मैंने सोचा था मैं जाना ही जाना है बस। ओके उसके लिए साइकिल चाहिए, और साइकिल मुझे रामकृष्ण मठ थ्रू से अम, राम की बिल्डिंग राम की बिल्डर से मुझे साइकिल मिला था। अब मेरे पास जो है वो साइकिल से मैंने प्रैक्टिस किया था। 2016 अक्टूबर 25 मैंने लद्दाख टू खारदुंगला तक मैंने साइकिलिंग स्टार्ट किया था। ये वाओ साइकिलिंग के लिए बहुत बहुत लोग मुझे सपोर्ट किया था, ओके स्पेशली रूपा मैम, होप यू नो हर, रूपा श्रीरामा एंड स्मिता मैम, रंजीत श्रीवास्तवा, शेषव ओके गौर, Mayank sir and Ranjit sir, and many people involved in राइट Dr. Manish Gaur, which I am working. ओके So इतना सारे इन्वॉल्व हुआ वो करने के लिए। एंड साइकिल ओके दीनानाथ हरपनाली दिन साइकिल राइट एंड many people and Reliance Diamond कंपनी, ये सब बहुत सारे इन्वॉल्व हुआ था मैं साइकिलिंग करने के लिए, क्योंकि मैं पहले आदमी है ट्रिपल एम्पिटी टू का ये triple MPT. I'm the first triple MPT from the India to do all these things like Katungla to Kanyakumari. Nobody has done till now. So मैंने ये प्रपोजल किया था, और वो लोग भी बहुत क्वेश्चन पूछा है हमें, कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बहुत पैसा खर्चा होता है, कहाँ से लाते हैं। मेरा करेक्ट सैलरी तो 11,000 था उस टाइम में। वो 11,000 से मेरा रेंट भी पे करना है, मैं स्पोर्ट्स के लिए भी करना है, ये 11,000 में कैसे कर सकता हूँ। उस टाइम में राइट रूपा मैडम ने बोला था, शेखर मेरे पास 50,000 नहीं, यू कैन टेक दैट 50,000। और जब आपके पास रहता हो तभी दे दो, ना दे दो, बस आपको आपका इच्छा वाओ पूरी करना है। तो मैंने ये किया था। ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ऐसा मैडम ने और दूसरा लोगों को बताया, वो साइकिलिंग रनिंग ग्रुप में बहुत सारे राइट डोनेशन मिला था उस टाइम में। अच्छा कम से कम 4 लाख रुपीज इन माई अकाउंट द टाइम। वेरी नाइस साइकिल टीम मैप के लिए रेडी किया था, वो इनग्रेशन ओके किया था उधर। वहां से मैंने इमीडिएटली खारदुंगला पहुंच गया, सॉरी लद्दाख पहुंच गया। अक्टूबर 25 को मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया। जब मैंने साइकिलिंग स्टार्ट किया था दैट वाज -5 to 6 टेम्परेचर देयर। बिल्कुल सही बात सो है विंटर स्टार्ट होने के टाइम सारे रास्ता बंद हो गए हैं, वो मनाली का रोड पूरा बंद हो गया है। मुझे ओहो, ये हमारा जवान के तरफ से मुझे रास्ता मिल गया। वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट किया था लद्दाख में, और एक ओके कैंप बेस कैंप। वहां से मैंने स्टार्ट किया था लद्दाख टू करदुंगला। वो करदुंगला 35 किलोमीटर स्ट्रेच, अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर राइट मैंने सुबह सुबह मैंने 6:30 को मैं स्टार्ट किया था बेस कैंप वहाँ कैंप से। लेट है मैंने ऊपर तक पहुंच गया, बहुत टाइम ले लिया, और लगभग साढ़े दो टू 3 o'clock हो रहे हैं, और टेम्परेचर लो हो रहे हैं। मगर मेरा ड्रीम ही वो उसके ऊपर जाकर मेरा साइकिल ऐसा उठाना है। राइट बट मैंने बहुत सफर के कई कई बार चल के ऐसे पेडल किया था। उस टाइम में बहुत क्रॉम्पन्स भी आया था उस टाइम, लो टेम्परेचर में फर्स्ट टाइम मैं साइकिलिंग, एंड मोreover दैट लो टेम्परेचर फर्स्ट टाइम एंड ट्रैवल। सही बात है एंड सो वो साइकिलिंग मैंने पहुंच गए, ऊपर पहुंच गए, जहां मैंने हमारा जवान सर से बात हो गए। बस ऐसा साइकिल उठाया, उन लोग ने मेरा फोटो खींचा है, उन लोग से सेल्फी खींचा है। आई एम दैट मोमेंट मेरा जिंदगी में नहीं भूल सकता, क्योंकि दैट वाज माय ड्रीम। मेरा ड्रीम कंप्लीट किया था। दैट नॉट ओनली दैट माय ड्रीम ऊपर जाकर ऐसा साइकिल उठा कर फिर कार में आना, वो दैट इज नॉट माय ड्रीम। आई वांट टू come along with cycle, no ओके transportation, nothing. So बट मेरे सेफ्टी के लिए हमारा आर्मी लोग ने बोला था यू शुड कैरी वन व्हीकल, बिकॉज जो आगे सपोर्ट रास्ते में व्हीकल कुछ तो भी हो सकते हैं, इसके लिए अब एक व्हीकल हायर करना पड़ेगा। मैं हायर किया था। वहां मुझे वहां से पंजाब नहीं सूरत भी नहीं है,
ओके, कुछ दूर तक आए तो मनाली, मनाली के बाद चंडीगढ़। सूरत, आई थिंक सूरत भी नहीं है, भूल गए मैंने, प्लेसेस भूल गए ठीक हैं। है, तो जम्मू। ओके, वहां तक जम्मू नहीं, पहुंच गया चंडीगढ़। मैंने, हाँ। वो हायर किया था, वहां मैंने उसको भेज दिया। वहां से ओके। हमारा जान पहचान वाला संतोष अन्ना, उन्हें उनके सपोर्ट से मेरा जो लगेज है मैं कभी भी कैरी नहीं किया, उधर से दूसरा जगह में जहाँ जाते हैं वहां शिफ्ट करते रहते हैं। तो अच्छा। इसके पहले और जब मैंने खरदुंग लट्टू मनाली तक, और एक भी बहुत स्ट्रगल हुआ था मैंने, इसके करेक्ट। बारे में जानना बोलना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने लास्ट हमारा इंडिया का लास्ट कैंप है मनाली के पहले, जो रोहतंग, रोहतंग नहीं, पांग, PANG, पांग, पांग हाँ। प्लेस है हमारा, जो लास्ट कैंप था उस टाइम, लास्ट कैंप है। वहां मैंने लगभग 230 हो गए हैं, 230 हो गए हैं, उधर में पहुंच गए हैं। और कैंप में वो भी कैंप क्लोज हो रहे हैं, कैंप भी क्लोज हो रहे हैं उस टाइम में, क्योंकि वो विंटर सीजन में क्लोज होता है। राइट। तो वहाँ एक कैंप है जो जहाँ लारी वालों को, जो बड़ा बड़ा व्हीकल वालों को कुछ मिलता है, उधर खाना मिलता है। उधर अच्छा। मैंने मैगी खाया था। बस हमें सो जाना है, बहुत थक गए मैंने, उतना पहाड़ ऐसा चढ़ते चढ़ते उतना लो टेम्परेचर में आया था, करेक्ट। एनर्जी कम हो रहे हैं। उसमें मैंने सोने के लिए सोचा था, अगर सो जाने के लिए एक हॉट प्लेस चाहिए। उस टाइम में मैंने कैब लाया था, उसी कैब में सो गए हैं। वो कैब में भी क्या हो गए हैं, उसमें हीटर चालू करके सो गए हैं। बैटरी। बाद में वो हीटर भी बंद हो गया, हमारा पूरा गाड़ी बर्फ से भर गया। ओहो। मैंने लिटरली आई वाज फ्रीज लाइक दिस, ही सेड मी। इन्होंने आग जलाया, मुझे लेके जाके उधर आग के पास खड़ा है। सुबह मैंने उठ गया, अच्छा बोल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, कम से कम तो फोटोज भी नहीं खींचे, मगर वो व्हीकल का फोटोज मेरे पास है, वो कितना बर्फ भरा हुआ। बिल्कुल। तो वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया। और भी फिर मैं मर जाके फिर भी और जिंदा बच गया, और कुछ तो भी करने के लिए, वो तो वो करके दिखाना है। तो मोरेवर मेरा ऊपर बहुत लोग डिपेंड हुआ, तो ये आदमी कर सकते हैं, जो उसको नहीं। यूटिलाइज करना है हमें, करके मैंने लास्ट दिसंबर 28, 2006 मैंने कन्याकुमारी में मेरा साइकिलिंग ऐसा होता कि आई completed my cycling 4,100 वंडरफुल। kilometers. I pedaled in 48 days, but I took total 68 days. जब मैंने ओके। हैदराबाद आया था, हैदराबाद में बहुत सफर हो गया, किडनी में स्टोन्स फॉर्म हो गए हैं, बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन, लो फोर्ट। वाटर। फोर्ट है। सो उसे 20 दिन निकल गया। ओके। So pedaled in 48 days, ओके। total completed in 68 days. ओके, So शेखर, आई स्टॉप यू है। yeah, अच्छा, मेरे को ये बताओ, 2008 में भी इंसिडेंट no, हुआ? no, no, I can't hear. You can hear me? No, Just one sec. Let me change the device then. Uh, one sec. Yeah. अरे इसको अनम्यूट करना। Now you can hear me? wait. I think this is my problem. I'll request others if somebody can tell if it's audible. मेरा वॉल्यूम रिड्यूस हो गया है, नहीं हो रहे हैं अभी। मेरा आवाज आ रहा है? तुमने disconnected अच्छा, then you carry on. We can hear you. ओके, वहां से मैंने साइकिलिंग कंप्लीट किया था 2006 में। और जब मैंने ऑफिस में ज्वाइन हुआ, उस टाइम में मुझे प्रमोशन मिल गया। तो Okay. सीसीटी ऑपरेटिंग से बैक ऑफिस को शिफ्ट किया था मुझे। वहां भी मैं, और ये सब कुछ करने के बाद मुझे और कुछ कॉलेजेस में सेशंस देने के लिए इनविटेशंस आ रहे हैं, और कुछ कॉलेजेस एंड कुछ कॉर्पोरेट कंपनी से इनविटेशंस आ रहे हैं। उस टाइम में वो कॉर्पोरेट कंपनी में क्या होता है, उतना लीव्स नहीं मिलता, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दिया। Okay. इसके बाद मुझे डॉक्टर मनीष गौर ने
डॉक्टर मनीष गौर ने मुझे उनकी हॉस्पिटल में मुझे जॉब दिया था। उन्होंने बहुत फ्रीडम दिया था मुझे, जो भी करो ऑफिस का आ जाओ अपना काम कर लो। और स्पोर्ट्स अच्छा। इन्हें भी, और स्पोर्ट्स रनर है, इन्हें भी मैराथन रनर है, इन्हें भी साइकिलिस्ट है। सो एक स्पोर्ट्समैन का स्ट्रेस एक स्पोर्ट्समैन को मालूम होता है, करेक्ट। इसलिए वो सपोर्ट किया था मुझे। अभी भी उसके साथ काम कर रहे हैं, हमें उसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं अभी। ओके। सो मैराथन हो गया, मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, मैराथन हो गया, साइकिलिंग हो गया, और क्या कर सकते हो, और बैडमिंटन में खेलता हूँ मैं, और स्विमिंग भी करते हैं। और क्या कर ओके। सकते हैं ताकि मैंने माउंटेन चढ़ सकता। इसे ओके। सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चलते रहते हैं, और जो नॉर्मल पर्सन जो करते हैं उनकी जैसे मैं भी कर सकता हूँ। जैसे मेरा जैसे लोग हैं, उन लोग को मैंने इंस्पिरेशन जैसे खड़ा है उनके सामने। हम भी कुछ भी कर सकते हैं। हमारा हेड एंड हॉर्स, इफ इट इज स्ट्रेट यू कैन कॉन्कर द माउंट एवरेस्ट। सो आई बिलीव इट। सो आई स्टार्टेड माय जर्नी 2018 with Mala madam, अच्छा। Mala ma'am. Actually, first I contacted Mr. Bharat. ओके। So भरत ने बोला था, उसी उसी टाइम में माला मैडम जा रहे हैं, उनके साथ मैं मिला दूंगा, उनके साथ जा ओके। सकते हैं। ठीक है। एंड दैट टू, दैट वाज माय फर्स्ट ट्रैकिंग। ओके। लो टेम्परेचर में जाना है, और जो इसी आर्टिफिशियल लेक पे जाना है। राइट। So it's a difficult situation of mine to go Everest base camp. So राइट। total 14 days में मैंने ईबीसी या। कंप्लीट कर चुका हूँ with माला मैडम, अरुण सर ने, एंड रोमी सर, एंड लक्ष्मी मैम, माला वेरी मैम, नाइस। और कुछ लोग हैं। करेक्ट। टोटल 7 मेंबर्स टीम। उनके ओके। साथ मैंने 14 डे ऐसा गुजर गया, और इतना बहुत स्ट्रेस फील हुआ था। तो उसने उस टाइम में बारिश गिर रहे हैं, उस टाइम में धूप आ रहे हैं, कब क्या होता है नहीं मालूम उस टाइम में। ये सब बिल्कुल। कुछ मैंने ये सब कुछ मैंने देखा था। अ, पहले मैंने काठमांडू गया था, काठमांडू से लुकला गया, राइट। लुकला से, और लुकला जर्नी इज वेरी डेंजर जर्नी फ्रॉम काठमांडू टू लुकला। राइट। दैट वाज द वर्ल्ड हाईएस्ट चलता रहता हो। डेंजरस एयरपोर्ट। तो करेक्ट। वहाँ भी बहुत कभी कभी मौसम चेंज होते रहते हैं। उस टाइम में जब मैं लुकला में पहुंचे, लुकला से एक आधा घंटा 1 घंटा ले गए, खाना खा लिया, फिर वहां से शुरू हुआ। फर्स्ट स्ट्रेच आई थिंक 5 किलोमीटर्स और 6 किलोमीटर्स फर्स्ट। I forgot all the names. So different, राइट। I want to pronounce all the names. So वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। बहुत लोग वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे टीम में मैं ही हूँ एमपीटी हूँ। उस टाइम में मैंने भूल गया आई एम नॉट एमपीटी, एंड आई ऐसा फील हुआ था उन लोग के साथ। बहुत मजा करते हैं, मजाक मजाक करते करते वो 14 डेज गुजर गए हैं। 14 डेज कंप्लीट हो गए हैं। एवरेज बेस ओके। कैंप में हमें मेरा लेग उठा के ऐसा फोटो दिखाया। लिया। तो हमारा नेशनल फ्लैग ऐसा होस्ट किया था मैंने। तो दैट इज ऑल्सो मेरा दूसरा स्टेप पहुंच गया मैंने। दूसरा इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल को मैंने पॉसिबल कर चुका हूँ मैंने। तो दैट इज ऑल्सो फर्स्ट ट्रिपल एमपी फ्रॉम द इंडिया। ओके। एंड वहां से मेरा माउंटेनियरिंग लाइफ स्टार्ट हो गया। एंड 2019 में भरत से ज्वाइन हुआ मैंने। राइट। भरत ने भरत ने क्या बोला मैंने बता दूंगा, जब मैंने एल्ब्रस पे जाते हैं ना तभी मैंने बता दूंगा। भरत ने एक बात बोला मेरी लाइफ में, अनअवॉइडेबल माय लाइफ। सो भरत के साथ मैंने प्लान कर रहा हूँ। ये सब करने के लिए बहुत पैसा खर्चा होता है, कहाँ से मिलता है? करेक्ट। 11,000 सैलरी में ये कहाँ से मिलता है? ये बहुत करेक्ट। बड़ा टास्क है मेरा लाइफ में। I'm really, I swear, I'm really thanks to whoever helped me for my success. I'm really so thanks to them.
ये लोग नए हैं तो मुझे स्पॉन्सर्स, मुझे वेल विशर्स, ये सब लोग नए हैं तो मैं नहीं हूँ अभी आपके सामने नहीं खड़ाने वाला। एंड थैंक यू सो मच फॉर देम। एंड वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया। मैंने क्राउड फंडिंग भी स्टार्ट किया था और क्राउड फंडिंग से मैं उतना पैसा नहीं मिला था, 70,000 मिला था उस टाइम में। एल्ब्रस जाना है, दैट वाज रशिया's highest peak राइट and seven summits, one of the main peak in seven summits. तो ये एल्ब्रस को जाने के लिए कम से कम मैंने आई स्पेंड 1.8 टू 2 lakhs आई थिंक। राइट तो उनके लिए मैं बहुत बहुत डोनेशन मिला था। उससे मैंने एल्ब्रस का ट्रिप स्टार्ट हो गया और वीजा प्रोसेस हो रहे हैं। भारत को मैंने पैसे बहुत प्रॉब्लम दिखाया था, पैसा नहीं है भैया तो हम बाद में दे देते हैं ऐसा। मगर इन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं, जो मॉनिटर करते हैं ना उन लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं, जो मालूम है मेरे से राइट ये हो गया है। सो हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया। रशिया पहुंच गया, रशिया से हमारा टास्क स्टार्ट हो गए। रशिया से हमारा टास्क स्टार्ट हो गया जब इन्हें हमें राइट बेस कैंप से सॉरी नीचे से जब होटल से ऊपर बेस कैंप तक आना है, उसे बेस कैंप तक आ गए हैं। और फर्स्ट डे ट्रेनिंग हो गया, सेकंड डे ट्रेनिंग हो गया, थर्ड डे सबमिट डे, थर्ड डे सबमिट डे। ये सबमिट डे क्या हो गया उसके आज शाम को क्या हो गया, रात में चढ़ना है, 11 बजे को ऐसा स्टार्ट होना है। उसके राइट शाम को मैंने क्या किया है, जब हमारे शेल्टर्स रहते हैं ना, शेल्टर्स के पीछे जाके मैंने मेरा एमडी से बात कर रहे हैं, डॉक्टर मनीष सर से एंड मैडम से बात कर रहे हैं। सर मुझे डर लग रहा है, शायद मैं जिंदा वापस नहीं आ सकता हूँ। मैं इतना तक आ गया, मुझे नहीं आ सकता हूँ, मैं नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा, मुझे भूलना मत सर बोल के मैंने ऐसे यही बात बात कर रहे हैं। भरत सर ने नीचे से पीछे से आ गया, उसी टाइम में बोल रहे हैं क्यों रो रहे हैं। If you think negative, you always be a negative. You can't climb. You cannot climb. करेक्ट You should think negative way. So, what मैंने अभी यही बात है भरत ने बोला था, राइट अगर ऐसा करते हैं ना दूसरी बात मेरे साथ नहीं आओ, डोंट कम विथ मी। करेक्ट मैंने फोन रख दिया, सो गए हैं, खाना खा लिया, सो गए हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं। उसी टाइम में 12 बजे का हमें स्टार्ट किया था बेस कैंप से। लगभग हमें 7:30-8 बजे हमें सैडल पॉइंट तक पहुंच गए। सैडल पॉइंट से तक पहुंच गए, उस टाइम में बहुत क्लाउड्स आ रहे हैं, मतलब जो बहुत विंड्स आ रहे हैं, तो आइस नीचे निकल जा रहे हैं। जब हमें सुबह जब सनराइज नहीं था उस टाइम में कुछ भी नहीं दिखा था, ओनली लाइट्स दिखता है चमक चमक के। जब राइट सनराइज हुआ तब मैंने लेफ्ट साइड से देखा था, ऐसा स्टोव है। डर बिल्कुल गया मैंने, भरत गारो मैं नीचे गिर जाऊंगा। भरत गारो प्लीज सपोर्ट। भरत मेरे पीछे पीछे बहुत पेशेंस है, भरत मेरे पीछे पीछे, जो मैंने पैदल ऐसा एक आगे कदम आगे करते हैं ना, और मेरे पीछे एक आगे एक कदम करते हैं ऐसा मेरे सामने। और यूरी मेरा गाइड एंड पीछे भरत गारो, ये तीनों के दोनों के बीच में मैं हूँ। एक एक स्टेप लगा के बहुत पेन भी हो रहा है मेरा लेग में, क्योंकि मेरा राइट स्टम्प फ्रीज हो रहा है। क्योंकि जब जहाँ ज्यादा स्ट्रेट होते हैं उसे ठंडा हवा से और ज्यादा पेन होता है, फ्रीज है क्रैम्प्स आता है। करेक्ट एंड ऐसे ढकल के मैंने सैडल पॉइंट तक पहुंच गए। और सैडल पॉइंट से और ऊपर समिट के पहले और एक सैडल पॉइंट चढ़ना है ऐसा। ये बहुत बड़ा टास्क है। जाने के टाइम में गए और रोप को रोप को टाई करके मैंने ऊपर गए, ऊपर पहुंच गया और समिट पॉइंट को पास पहुंच गए। और अभी हमारा नेशनल पार्क हॉस्ट किया था ऐसा। बहुत सारे फोटोज खींचे हैं और मेरा देख ऐसा बता के मैंने जीत लिया, मेरा जिंदगी में और आगे कदम पहुंच गया। सो दैट फील आई नेवर, मुझे बताने के लिए नहीं है, मैं वो उतना खुश हुआ, मैं उस टाइम में बहुत खुश हुआ। अच्छा शेखर अभी आवाज आ रहा है क्या? नहीं है, Can you बता hear दो, me? मैं सुन रहा हूँ। अच्छा
तो मेरे को ये बताइए 2008 में आपका इंसिडेंट हुआ, 2004 दैट वाज द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट इन लाइफ, 2014 जो था दैट वाज अगेन अनदर टर्निंग पॉइंट जहाँ पे आपका रनिंग से आपको एक्सपोजर मिला कि आप कुछ कर सकते हैं लाइफ में, अचीव कर सकते हैं, है ना? सर आवाज बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, मुझे क्या नहीं हो आ रहा? गया, फोन आया था इसलिए इसके वजह से कम हो गए। एक बार ट्राई करता हूँ, आप बता दो, मैं सुनता हूँ। अच्छा ऐसा करो, या तो लॉग आउट करके फिर लॉग इन कर लीजिए। हाँ, एक मिनट। हाँ एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए, आई नो कर लीजिए। मैंने अच्छा, till that time I'll tell the viewers, like 2014 the incident he is mentioning about the event जहाँ पे इन्होंने 10K किया था। अभी आवाज आ रहा है? अरे म्यूट बंद कर लो। अच्छा, तो 2014 में जो एयरटेल हैदराबाद मैराथन में आपने पार्टिसिपेट किया, आई लाइक टू टेल द व्यूअर्स आल्सो बिकॉज टुडे इज अ स्पेशल डे इन द सेंस कि टुडे इज द 13th एनिवर्सरी ऑफ हैदराबाद रनर्स। 13 years हो गए हैं आज, तो इसलिए दैट्स अ स्पेशल डे। आई थॉट मे बी बिकॉज एयरटेल हैदराबाद मैराथन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय हैदराबाद रनर्स, यू नो इट, आई मीन बिकॉज दैट इवेंट प्लेड सच अ मेजर रोल इन योर लाइफ। तो जब आपका इंसिडेंट हुआ था, यू आर 18 years old, पेरेंट्स को भी एकदम लगा होगा 18 साल का लड़का है, अभी टाइम है हमारे लुक आफ्टर करेगा, और इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। उसके बाद 8 से लेके 14 तक कितना स्ट्रगल आपने किया, पेरेंट्स ने किया, सभी ने किया। देन 14 में एकदम जब लाइफ चेंज हो गया, मतलब यू रियलाइज यू कैन डू एवरीथिंग, एंड एवरीथिंग मीन्स कि नॉर्मल डे टू डे जो बाकियों के लिए होता है, आपने उससे ज्यादा बहुत कुछ अचीव किया। बीट कश्मीर को टू कन्याकुमारी, जो मतलब हार्डली मतलब एनीबॉडी वुड डू, एंड देन अगेन एवरेस्ट बेस कैंप किया, 200 के ब्रेवे, बिकॉज आई रिमेंबर वो एक ब्रेवे में आई वाज आल्सो देयर अर्ली मॉर्निंग में, जो HPC में स्टार्ट होना था। तो इतना ज्यादा आपको सपोर्ट जैसे लोगों ने दिया, अंदर से इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई कि नहीं भी करते ही रहना है? बिकॉज ये रहता है ना कि पाँव निकल गया, हाथ नहीं है, उसके बाद एंड यू आर नॉट फ्रॉम अ वेरी वेरी रिच बैकग्राउंड कि मतलब ठीक है आप मैनेज कर लेंगे चीजें। हर चीज इतनी स्ट्रगल थी, सैलरी से लेके जॉब एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो इतना ज्यादा एनर्जी अंदर से कहाँ से आया स्ट्रेंथ कि ये सब करना है? सर पहले ये है, मैंने ये सोचा था मैं आई एम नॉट डिजेबल पर्सन, आई एम एबल पर्सन, आई कैन डू एनीथिंग। से ये मान लिया था मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यही मैं सभी लोगों के पास जहां मैं बात करता हूँ, जिससे मैं बात करता हूँ, ऐसे नॉर्मल पर्सन जैसे बात करता हूँ, आई एम नॉट एन एम्पटी। सो ये पॉजिटिव वे, इफ यू गो पॉजिटिव वे, इफ यू गो विथ पॉजिटिव वे, यू कैन अचीव एवरीथिंग। So, फिजिकल लिमिटेशन तो रहेगा ही ना, क्योंकि जैसे हाथ भी नहीं है, एक लेग भी नहीं है, तो एवरी स्टेप इज अ स्ट्रगल। No, sir. Physical strength is nothing, sir. Only depends on our mindset. That is true, Everything depends on your mindset. That's right, because I'll tell the viewers also, because आफ्टरनून में जब हम टेस्ट कॉल कर रहे थे, तो जब मैंने शेखर को बाय बाय बोला, तो अभी आई स्टार्टेड, पहले मैं नहीं करता था, अभी आई स्टार्टेड वेविंग आल्सो, आई वाज सेइंग बाय, एंड शेखर बिकॉज ही वाज होल्डिंग द फोन, ही डिडंट रिप्लाई, आई मीन ही कुडंट रिप्लाई, एंड आफ्टर 5 मिनट जब मैंने रखा, तब मेरे को स्ट्राइक किया दिमाग में कि यार मैंने तो बाय बाय किया ऐसे, ही जस्ट सेड ही डिडंट वेव। दैट वाज द टाइम आई रियलाइज हाउ कुड ही हैव वेव, बिकॉज एक हाथ में अगर फोन है, तो फिर इतनी स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो रहती है, मतलब ना, इट्स सो डिफिकल्ट टू इमेजिन। So, this is me. तो इट्स आई मीन बोलना आसान है, ठीक है, एक बार हमने 1 घंटे का इंटरव्यू ले लिया, खत्म हो गई कहानी, बट डे टू डे चैलेंजेस तो रहते हैं, उनको मैनेज करना, एंड देन एटमॉस्फेयर को मैनेज करना, जहाँ जॉब कर रहे हैं वहां पे भी करना, साइकिलिंग करके इतना मैनेज करना। तो हाउ डज दैट एनर्जी कम फ्रॉम, ये बताइए, बिकॉज हमें क्या रहते हैं, जैसे आज एक और से मैं बात कर रहा था, वी वर डिस्कसिंग इट अगेन अबाउट यू, तो हम यही बात कर रहे थे, हमने कहा हम परेशान है कि कोविड चल रहा है, कोई परेशान है कि भाई नी में इंजरी चल रही है, बट देन फॉर यू तो इट इज अ डेली अफेयर, फॉर लास्ट 12 years ये चल ही रहा है। और उसके बाद नॉट जस्ट नॉर्मल, यू हैव डन माउंटेनियरिंग आल्सो, दैट टू एल्ब्रूस एंड किलिमंजारो काइंड ऑफ, तो मतलब लॉट ऑफ पीपल दे आर नॉट एबल टू डू इट, नॉट दैट दे वांट टू डू, एंड देन फिजिकली भी पॉसिबल नहीं हो पाता कहीं का, वहां पे जाके सबमिट नहीं हो पाया, लॉट ऑफ अदर डिफिकल्टी। तो इतना अंदर वाली स्ट्रेंथ का जरा राज बताओ, कहाँ से आया ये, हम भी कुछ सीखे, हम भी कुछ कर पाए इन चीजों को फिर मोटिवेशन लेके। सर यही से हमें physically it doesn't matter, so only for it depends on our mindset. Mentally, if you want to do this, you can do.
nothing else. Only it depends on mentally. उसमें एक बार आप सोच लो, 2 हाथ 2 पैर रहते हैं, वो भी साइकिलिंग करते हैं, मैं 1 हाथ 1 पैर से भी साइकिलिंग किया था. सो उसमें फिजिकली से और फिजिकल और मैं it's not important in our life, physical. I think I'm sure you whatever you're saying makes a lot of sense कि भैया mental is the only thing, but then on ground पे तो मतलब बहुत ज़्यादा struggle तो रहेगा ही, इतना ज़्यादा कि मतलब something like us will not be able to understand. And ठीक है, but expedition वगैरह में करना वो how do you manage, because वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा difficulty रहती है. जैसे अगर आपने चढ़ना भी है, एक लेग नहीं है, दूसरी लेग में भी you have issues, एक हाथ भी नहीं है, तो उसके बाद फिर कैसे, how do you climb अगर आपने चढ़ाई वगैरह करना है तो? सर मेरे ये हाथ को भी मैं यूज करता हूँ. जब मैंने चढ़ने के टाइम में ये हाथ को मैं यूज करता हूँ. सारे जहां मेरा बॉडी में जो पार्ट बचा हो, ये सब पार्ट्स को मैं यूज करता हूँ क्लाइंब करने के टाइम में. अपने थॉट्स आते रहते हैं. जब अब रोप क्लाइंब करने के टाइम में ऐसा मेरा टीथ से पकड़ के ऐसा जाता है, ऐसा टीथ से पकड़ के ऐसा ऊपर जाते हैं. सो नीचे सपोर्ट मिलता है. ये सब अपने हो जाते हैं सर. उसी टाइम में इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिलता है हमारा बॉडी से. And because I remember fund generate करना is again a major issue, because these kind of activities take a lot of money, and every time managing so much of funds, which again is very very challenging. I remember जब आपसे बात भी हो रहा था, you were also saying कि ठीक है, you want to do it, you're training so hard to do it, but then again it all boils down to आप उतना generate कर पाते हैं funds, because अगर आपने एल्ब्रूज जाना है, किलिमंजारो या साइकिलिंग एक्सपीडिशन, एंड इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो वो तो अलग से एक लेवल का चैलेंज हो जाता है ना फिर. यस सर. बिकॉज़ द मोमेंट यू आस्क, हां प्लीज गो अहेड. सारे मैंने लास्ट विचर माउंटेन क्लाइंब किया था, माउंट कोइसियास को, ऑस्ट्रेलिया. राइट, ऑस्ट्रेलिया वाला माउंट कोइसियास को क्लाइंबिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं. मैंने एक्सपेक्ट किया था फंडिंग मिल जाएगा. राइट. इसी फंडिंग का मैंने मिनिमम 1 रुपए भी नहीं मिला था. 1 रुपए से भी 1 रुपए भी नहीं मिला था. अभी तक मैंने जितना सेव किया था, मेरा पेंशन का मनी, सारे जहां मैं सेशंस लेने के टाइम में जाते हैं ना, वो लोग मुझे पैसा देते हैं. वो पैसा मैंने इकट्ठा करके माउंट कोइसियास को क्लाइंब किया था मैंने. जो फंडिंग में क्या होता है सर, जो करते हैं बार बार नहीं कर सकते. राइट. We cannot depend on them. So इसमें भी यही होता है, हमारा न मिला फंड मिलता है या नहीं मिलता हो, हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ड्रीम से यही क्लाइम करते में भी यही हुआ था. 7 सम में भी करना है, 7 समिट्स में भी करना है. 3 समिट्स कंप्लीट कर हूं मैंने अभी. एल्ब्रस है, माउंट किलिमंजारो और माउंट कोइसियास को भी है. अगर ये कोविड नहीं हुआ था ना, हमें अर्जेंटीना जाने वाला था इस दिसंबर में. अमेजिंग. मतलब बिकॉज सुनना अलग रहता है, बट जिस पे बीतती है उसको समझना और वो निकालना, that's a different thing. So I see a few questions which have come up. Chitrasen has asked a few. I'll just go through them. I'll request आप उसको फिर address करें. ठीक है, तो this question is from Chitrasen. He wants to know there is slipping chances between prosthetic leg and pedal. Because जब आप साइकिल कर रहे हैं तो obviously slippage होगा. तो उसको कैसे आप मैनेज करते हैं और उसका alternative क्या है? मतलब आपने इतना जो साइकिलिंग किया, एंड स्पेशली जो ले से खारदुंगला वाला है, वो तो मैंने देखा हुआ है, तो आई कैन रिलेट कि वहाँ पैदल चलने में इतना मुश्किल होता है, साइकिल लेके वहाँ पे जाना. हाउ डू यू मैनेज स्लिपेज बिटवीन द पेडल्स एंड द आर्टिफिशियल लेग दैट टाइम? सो मैंने जो आर्टिफिशियल लेग यूज किया था, उसी लेग से मैंने किया था, और जो कभी कभी स्लिप होता है, मगर उसको पेडल को सब लोग क्या करते हैं, ऐसा क्लिप्स रहता, पेडल क्लिप्स रहता, मैं वो भी यूज नहीं किया था. जहां मैंने पेडल रहता, उसी पेडल को ऐसा लाइक शॉक्स जैसे रहता. okay. उसी से मैंने
ऐसा दबा के रख के मैंने, उसमें बहुत प्रेशर रहता है, उसमें बहुत प्रेशर रखा है, तो ये शू के अंदर रहते हैं ना, वो उसमें क्लीट्स में घुस जाते हैं, उस टाइम में स्लिप नहीं होता। और क्या होता है, और भी ये हमारा लाइनर होता है, ये लाइनर में बहुत पसीना फंस जाते हैं, उसी पसीने से कब हमारा लेग निकल जाते नहीं मालूम पड़ता है। उस टाइम में क्या करते हैं, हमें लगभग जब हमें मालूम होता है उसमें पसीना से फुल हो गया, तभी हमें रुक के फिर उसको क्लीन करके फिर लगाना पड़ेगा। तो यार साइकिल को मैनेज कैसे करते हो जब आप इतना ऑल्टीट्यूड में जा रहे हो? एक अगर हाथ नहीं है, क्योंकि वहां तो रास्ता इतना स्मूथ तो है नहीं जैसे दिल्ली में या हैदराबाद में प्लेन रास्ता है, तो वहां बैलेंस वगैरह कैसे हो पाता है एक हाथ से और आर्टिफिशियल लेग से? कर सकते हैं सही, मैंने आर्टिफिशियल लेग को अल्टरनेट पोजीशन में रखते हैं। जब मैंने डाउन को जाते हैं ना, मैंने आर्टिफिशियल लेग को मैं डाउन में ऐसा लगाते हैं। इसी जो नी पॉइंट रहता है ना, उसको मैंने जो हैंडल को स्ट्रेट बार रहता है ना, उसको सपोर्ट करते हैं, उसके दबा के रखते हैं मैंने, तभी स्लिप नहीं होता। ग्रेट। उसमें बहुत प्रॉब्लम भी होता है, मगर वो हमारा ड्रीम है, वो बहुत प्रॉब्लम होता है सर। फिर भी हमारा ड्रीम है, कैसे भी कंप्लीट करना है बस। यू हैव सीन, आपने इतना ज्यादा और डिफिकल्ट टाइम देखे, तो मे बी जो लेवल ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ होती है, दैट इज ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम चित्रिसेन। ही वांट्स टू नो, आपने जो एक्सपीडिशन अभी तक की है, बीट साइकिलिंग, बीट माउंटेनियरिंग, सबसे डिफिकल्ट और चैलेंजिंग एक्सपीडिशन या इवेंट क्या रहा आपका? Sir, every mountain their own face. So I struggle a lot in Kilimanjaro. Acha. Yeah. Because Elbrus, I'm sure, has to be more difficult, but Kilimanjaro incident बताइए. सबसे बढ़िया ट्रिप इन माय लाइफ, एल्ब्रस. अच्छा, नाइस. So Kilimanjaro में क्या हुआ? Kilimanjaro में बहुत प्रॉब्लम फेस किया था, क्योंकि ज्यादा दिन चलना है। एक दिन 8 किलोमीटर और 15 किलोमीटर और नेक्स्ट डे 18 किलोमीटर जैसे चलना है, कि चलते रहना, बहुत सारे विंड्स आते हैं, ढकलते हैं ऐसे। फिर में उसी में क्या हो गया, उतने लो अल्टीट्यूड में चला था ना, वो मेरा पैर का भी ऊंच आया था, और 2 ऊंच आया था, एज पॉइंट में ऊंच आया था, उसी ऊंच से में बहुत प्रॉब्लम हुआ था चलने के लिए, क्योंकि ये माउंट किलिमंजारो कैसे रहता है, लाइक स्ट्रेट लाइक दिस, राइट, देयर इज लेस साइज। जो गिलमंस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं ना, उसी वहां से और थोड़ा नीचे से आइस मिलता है, वो आइस में बहुत डिफिकल्ट हो गया। हमें क्रैम्पॉन्स भी नहीं पहना था। हमें इंफॉर्मेशन ये है कि उतना स्नो नहीं है, कुछ उसके यूज नहीं होता बोल के सुना है, इसलिए क्रैम्पॉन्स भी कैरी नहीं किया था उस टाइम में। मगर मुझे क्रैम्पॉन्स का जरूरत पड़ा है, क्योंकि मैंने बैलेंस करने के लिए मेरा हाथ भी नहीं है उसे बैलेंस कर सकते बोल के। सो मैंने वो बार बार स्लिप हो रहे हैं। जब मैंने गिलमंस पॉइंट पहुंच गए, वहाँ मेरा गाइड सिमोन उन्होंने मुझे मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था, ब्रो आई नीड crampons, I can't walk without crampons because it is slippery. If I slip डायरेक्ट वो वोल्केनो रहता है ना, उसमें गिर जाना है बस। सो ये डिफिकल्ट सिचुएशन में तो क्रैम्पॉन्स लाके दिया था, उसी क्रैम्पॉन से भी स्लो ही चल के गया था ऊपर। जब मैंने समिट के पॉइंट पहुंच जाते हैं तो लगभग 300 to 200 मीटर वेरिएशन में मैंने उधर मेरा खत्म हो गया, एनर्जी खत्म हो गया, मैं नहीं चल पाता हूँ। और से उन्हें मोटिवेट करते करते शेकर ब्रो, शेक बाय ऐसा बुलाते हैं, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन से बुलाते हैं उन्हें। So मुझे बहुत मोटिवेट किया था, शेकर you can do it and they keep motivating me to reach Urupi. So okay, Shekhar, last 2 questions. Okay, first is any regrets in life? Any regrets जब लगा कि नहीं यार गलत हो गया लाइफ में, बिल्कुल गड़बड़ हो गई, इस टाइप से कुछ? Any regret in life की कुछ? बहुत बार हो गया। फर्स्ट रिग्रेट हुआ था जब मैं हमारे सिंपैथी दिखा रहे हैं, उस टाइम में बहुत रिग्रेट हुआ। मैंने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था। सुसाइड कैसे अटेम्प्ट किया था, मैंने जब दवाई देते हैं ना, मेरा वो सब सारे एक इकट्ठा एक
इतना सारे टैबलेट्स लेके खा लिया मैंने, कुछ भी नहीं हुआ, मैंने फिर भी जिंदा हुआ. सो दैट टाइम आई वाज थिंकिंग है कि मैं कुछ तो करना है, इसलिए मैं जिंदा बच गया. और दूसरी बार भी और भी जिंदा है, तो कुछ तो करना है. तब तक हमारा सुसाइड करने का जरूरत नहीं है, और सुसाइड करना भी रॉन्ग है. तभी मैंने obviously मालूम हो गए. बिल्कुल. Yeah. अच्छा, next question, last question. I'll request everyone to please switch on their videos. We'll take the photographs. Last question मेरे को ये बताइए, you have done so many things in life ना, mountaineering, cycling, ये वो. One incident जब आपको सबसे ज्यादा खुशी हुआ, मतलब happiest you ever felt in life, be it खारदुंगला, be it कन्याकुमारी, be it एल्ब्रूस, सबसे ज्यादा happiness कब मिला लाइफ में? मेरा हैप्पीनेस सिर्फ एल्ब्रस एंड माउंट कोइसियास्को. अरे वाह, वेरी नाइस. सिर्फ दो ही. वंडरफुल. सो खारदुंगला में अलोन था. ये खारदुंगला में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, एक क्योंकि मेरा प्रॉब्लम शेयर करने के लिए कोई भी नहीं, एक ड्राइवर था. उसी से क्या शेयर करते हैं, उनका लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी है. सो या ओके, अब ये एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन. शेखर, व्हाट्स नेक्स्ट? आई हर्ड आपने अभी 7 समिट्स का नाम लिया था, और क्या है आपका, मतलब व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट? Yes, I told you, 7 summits my power, 7 summits my dream. 7 summits करना ही करके दिखा दूंगा मैं. आई एम श्योर जैसा आपका कमिटमेंट है और जैसा आपका डिटर्मिनेशन है, आई थिंक 7 समिट्स इज अगेन करना ही पड़ेगा. Just I believe in my life. If you want to do anything special, just cross your limit for reach your dreams. Just cross your limits. But I am sure you have crossed your limit so many times. इतनी बार आपने इतने सारे जो चीजें की हैं with this kind of attitude, I'm sure 7 summits is again not far. ये सर, इसमें भी बहुत लोग बोला था कि तू नहीं कर सकते रहे तो तेरा लाइफ वेस्ट है. जो लोग मेरा सामने बोला था, वो लोग मेरा सामने आके you're great. They said you're great. I proved it. So हमारा हर जिंदगी में प्रॉब्लम्स रहता, उसी प्रॉब्लम्स को सामने फेंक के मेरा जिंदगी वेस्ट है बोल के मत बोलना. जो उसको आगे जाने के लिए क्या करना ये सोच लो. एक ही जिंदगी है हमारा, इसी जिंदगी में जो भी करो खुश रहो. मतलब जो पॉजिटिव वे से थिंक करना पड़ेगा. मेरा लाइफ में ऐसे कर रहे हैं. I'm proud to be saying all these things in front of you all, and thank you so much. Okay, that's all for the time we have. Thank you so much everyone for being here for such an inspiring talk. And one takeaway I would say to everyone, there'll be so many difficulties in life. Don't look back. Be upfront, face the challenges what are there. The way Shekhar has told, all of us and educated us on very, very important lessons in life. And he himself is a life lesson, If you go through him and interact with him, you'll learn more and more. And the kind of ambitions he has, 7 summits, I'm sure is a big, big challenge. But knowing him, I'm sure he pakka karke dikhayenge, and then we'll call him again and we'll learn his experiences in the next summits which you're doing. Thank you so much, Shekhar. Thanks everyone. We'll be posting this link subsequently on YouTube. Like, share, comment, whatever. If you like, please share it with your friends. Thanks so much. Bye, Shekhar. Good night. Jai Hind. Bye. Jai Hind. Jai Hind.